इंडिया के जितने एयर बेसेस हैं इस मामले में इंडिया से कम 20 साल आगे है। आपने एक्सपेंडिचर देखा है इंडिया का फौज का रिसेंटली? बिल्कुल मैं जानता हूं, मगर मैं तो वो अडॉप्ट कर रहा हूं ना कि जो मतलब यार, तो फिर अगर तुम्हें एक बंदा कहे और वो चीज़ रिलेट नहीं हो, इंडिया की अपने आर्मी, देखिए आपने डेटरेंस बनाया है एटम बम, क्या मतलब वो डेटरेंस का? दिफा के लिए होता है, लड़ने के लिए नहीं होता। खेल खत्म हो गया ना फिर। 1971 में हम देख चुके हैं, नूरजहां के गाने खूब आते थे और हम गाने सुन सुन के समझते थे कि इंडिया को शिकस्त दे देंगे। मफरूजों से न जंग लड़ी जाती है, न मईशत चलाई जाती है, न मुल्क चलाया। एक कंट्री है जिसकी 1/7 टाइम आपसे रिसोर्सेज हैं, आप उनके साथ मुकाबला करना चाहते हो? यार 60-70 साल में इसी वजह से तबाह हुए हो। तो अब तो हमारी हालत ऐसी है कि हमारा जिंदा रहना मुश्किल हो गया। तो आपको लगता है कि इस वक्त भी हम किसी शोबे में हम अपने पड़ोसी का मुकाबला कर सकते हैं? इस वक्त तो नहीं कर सकते। मईशत ले लें, दिफा के तैयारी ले लें, फिल्म इंडस्ट्री ले लें, म्यूज़िक ले लें, तालीम ले लें, साइंस ले लें, टेक्नोलॉजी ले लें, हम किसी शोबे में इस काबिल नहीं खड़े हैं कि मुकाबला करें। इंडिया ने तो चांद पे भी एक जहाज़ उतार दिया, हम तो अपना जहाज भी नहीं चला सकते। जय हिंद बंधुरा, आमी दीप और आपनारा देखছেন আপডেট इंडिया। বন্ধুরা, এই মুহূর্তে শুনতে পাওয়া যাচ্ছে পাকিস্তানিদের দাবি তারা নাকি ভারতের থেকে 20 বছর আগে আছে, তাদের নাকি এয়ারফোর্স। বন্ধুরা, এটা তো আপনারা পাকিস্তানি থেকে পূর্ব পাকিস্তানিদের মুখে অবশ্যই এই কথাটা শুনে থাকেন 26শে ফেব্রুয়ারি, সরি 27শে ফেব্রুয়ারি সেই ঘটনার কথা, অর্থাৎ অভিনন্দনকে সেই ধরে রাখার কথা আর গুড চায়ের কথা। কিন্তু তাদের যে আইএসপিআর মানে পূর্ব পাকিস্তানের আইএসপিআর এর তরফ থেকে অভিনন্দনকে ধরার পরে যে স্টেটমেন্ট দিয়েছিল যে আমরা দুজন পাইলটকে ধরেছি, দুটো ফাইটার প্লেন ধ্বংস করেছি, না জানি তারপরে একটা ফাইটার প্লেন কোথায় গেল, অপরজন পাইলট কোথায় গেল, বাকিটা তো আপনারাও জানেন। কিন্তু সেই সুন্দর চা খাওয়ানোর গল্পের পরে তারপরে যে সিনারিটা হয়েছিল সেই সিনারিটা আপনারাও জানেন, আমরাও জানি। মনে আছে পাকিস্তানের পার্লামেন্টে একজন সাংসদের ব্যক্তি যখন বলেছিল অভিনন্দনকে যদি আজকে রাত 12টার মধ্যে না ছেড়ে দিই তাহলে ভারত আমাদের উপর 12টার সময় হামলা করে দেবে। আর ওই মুহূর্তে পাকিস্তানের পিএম ইমরান খানের হাত পা সবকিছু ঘামছিল, মাথার ঘাম বয়ে বয়ে নিচে পড়ছিল। পরেও পাকিস্তানিদের যে আজকের দিনে অবস্থা, তারপরেও কিন্তু তাদের এতটুকু অহংকার কমেনি। তাদের বক্তব্য এটাই যে আমরা ভারতের থেকে আগে আছি। কিন্তু অপরদিকে কিছু পাকিস্তানি এটাও দাবি করে যে আপনারা কিসের উপর বেস করে এরকম ধরনের কথাবার্তা বলেন, যেখানে ভারতের সাথে আজকে আমাদের কোনো কম্পিটিশনই হয় না, লড়া তো দূরের কথা। আমরা 4-4টে লড়াই করেছি, তা আবার আমাদের তরফ থেকে ফার্স্টে অ্যাটাক করেছিলাম, তার পরিণতি কি সেটা আমরাও জানি। এক শ্রেণীর মানুষ আমাদেরকে বোকা বানাচ্ছে যে এতে আমরা কি করেছি, কিন্তু রিয়েলিটি এটাই আমরা সমস্ত যুদ্ধে হেরেছি। আর রইল বাকি অভিনন্দনের কথা, সেই দিন ভারত ওই পুরনো ফাইটার দিয়ে একটা নয় দুটো ফাইটারকে ধ্বংস করেছিল, তাহলে অপর ফাইটারটি বলতে আমাদের প্রবলেম কোথায়? সেই রাতে যদি অভিনন্দনকে না ছাড়তাম তাহলে রাত 12টার সময় ভারত আমাদের উপর হামলা করত। যেটা হোক বন্ধুরা, পাকিস্তানিদের যে সমস্ত ডিফেন্স এক্সপার্ট আছে তারা যে সমস্ত দাবিগুলো করছে তাদের দাবিগুলো একবার আপনারা নিজেরাই শুনে নিন। আর এর উপর আপনাদের কি মতামত সেটা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে জানান। আর হ্যাঁ, চ্যানেলটিতে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, সাথে ভিডিওটিকে একটা ছোট্ট লাইক করুন, কেননা আপনাদের ছোট্ট লাইক আমাকে ইন্সপায়ার করে এরকম টাইপের ভিডিও আপনাদের সামনে বানানোর জন্য। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। तरफ हम इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं, हमारी मईशत का कोई पता नहीं है। तो जो हमारा पड़ोसी मुल्क भारत है, वहाँ के जो नंबर्स आए हैं, जो जीडीपी ग्रोथ है तीसरे क्वार्टर की, वो तमाम जो एक्सपेक्टेशंस हैं उससे कहीं ज्यादा रही है। एनर्जी सेक्टर का गर्दिशी कर्जा जो है उसका वो बढ़ के 5422 अरब रुपए हो चुका है। एनर्जी सेक्टर का गर्दिशी कर्जा, इसके अंदर पावर सेक्टर भी शामिल है, इसके अंदर गैस सेक्टर भी शामिल है। बिजली और गैस दोनों का जो हमारा खर्चा है, वो पावर सेक्टर जो है वो जुड़ा हुआ है पेट्रोलियम सेक्टर के साथ भी। जैसे पीएसओ के 800 अरब रुपया जो है वो पीएसओ का भी देना है। किन्होंने देना है? पावर सेक्टर ने, यानी कि पावर हाउसेस ने, यानी कि बिजली बनाने वाले कारखानों ने। वो देते क्यों नहीं है? वो कहते हैं जी हमने बिजली बना के सरकार को दी थी, सरकार हमें पैसे नहीं देती, तो जब सरकार हमें पैसे देगी तो आप पीएसओ साहब हमसे ले लीजिएगा, ठीक है।
और सरकार कहती है कि जनाब हमारे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि ये बिजली हम महंगी बना के वसूल करते हैं और आगे हम पैसों पे बेचते हैं, उतने पैसों पे बेचते हैं जितने की बन रही होती है, लेकिन चोरी हो जाती है। 55% तक, 40% तक, 45% तक बिजली चोरी हो जाती है। हमारा जो पड़ोसी मुल्क भारत है, उनके जो तीसरे क्वार्टर के जो नंबर्स आए हैं, 8% जो प्रोजेक्शन थी उसके मुकाबले में 8.4% तीसरे क्वार्टर में उनकी ग्रोथ रेट रही है, जबकि ओवरऑल जो 2023-24 में जो उनकी इक्तिसादी या जो मौशी तरक्की की शरह थी, उसका जो हदफ था वो कुछ 7% था, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जो रिवाइज प्रोजेक्शन सामने आई हैं उसमें 7.6% तक उनकी जो जीडीपी ग्रोथ है वो रहने का इम्कान है। तो आप इमेजिन करें, जो धड़ाधड़ इस वक्त इंडिया रूस से तेल खरीद रहा था, उसके अंदर रुकावट पैदा हो जाने के खदशात पैदा हो गए हैं। रूस ने अपना, इंडिया ने क्या अंधी लगाई हुई थी कि वो रूस से तेल खरीदता था, वो तेल जो था वो इंडिया आता था, वहाँ पे वो रिफाइन होता था और रिफाइन होके वो जर्मनी को भेजता था। अब जर्मनी जो है वो बराह रास्त तेल और गैस रूस से नहीं ले सकता या ले रहा, ठीक है, यूक्रेन जंग की वजह से। तो जर्मनी यूं हाथ घुमा के पीछे से ले रहा था। जो करंट सिचुएशन है उसमें ये कोई हैरान कुन बात नहीं होगी कि अगर तीसरी मर्तबा लगातार जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के नरेंद्र मोदी, वो प्राइम मिनिस्टर मुंतखब होकर के आ जाएं। और यही वजह है कि जब आपके मुल्क में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर इश्यूज नहीं है, बहुत से वहां पर इश्यूज हैं, बट अगर आपके मुल्क में एक कंसिस्टेंसी होती है तो यकीनी तौर पर उसके जो समरात हैं वो फिर आना शुरू हो जाते हैं। अगर पाकिस्तान को मैं 1 मिनट के लिए फ़र्ज़ कर लूँ कि IMF से कर्ज मिल जाता है, वर्ल्ड बैंक से मिल जाता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से मिल जाता है, दोस्तों से मिल जाता है, फिर भी हम 2024 कैलेंडर ईयर में अपने बैरूनी कर्जों की अदायगी बर वक्त नहीं कर सकते। हमारी गर्दन दूसरों के हाथ में होगी कि वह हमें मदद करके बचाना चाहें तो बचाएं, जिसकी कोई सियासी कीमत होगी। सर, इसका कोई हल आपको नज़र आता है? क्योंकि तमाम ही पॉलिटिकल पार्टीज तो ये कहती हुई नज़र आ रही हैं कि हमने सियासत को नहीं रियासत को बचाया है, हम पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा रहे हैं, ये किस तरह मुमकिन हो पाएगा? ये जो कुछ तबाही बर्बादी मईशत और सलामती को आई है उसमें इन तीनों पार्टियों समेत सबका दखल है। नंबर 1, पाकिस्तान का जो सॉवरेन डॉलर बॉन्ड है उसको हमने देखा कि 1.25 सेंट से वो गिरा है इस हफ्ते की शुरुआत में। इस वक्त हमारे सामने मुख्तलिफ मुश्किलात हैं, लेकिन मुझे बताइए कि जिस कानूनी चाराजोई का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या हम मीसाके मईशत की तरफ बढ़ रहे हैं? जिस तरह इन्होंने मीसाके जमहूरियत किया और जमहूरी क़ुव्वतों को मज़ीद स्ट्रेंथन करने के लिए एक तरह से ये एक पेज पे मौजूद हैं, क्या आपको लगता है कि मईशत के हवाले से भी अब नागुज़ीर होता जा रहा है कि इस तरह का कंसेंसस डेवलप किया जाए? देखिए, मीसाके मईशत धोखे के अलावा कुछ नहीं है। कि हमें शायद जो आने वाले जो नया फाइनेंस मिनिस्टर होगा उनको मनमोहन सिंह से एक इंस्पिरेशन लेने की जरूरत है। लेकिन मैंने उस पर कमेंट किया कि एक डिफरेंस जरूर है कि यस, मनमोहन सिंह ने उस मुश्किल हालात में तमाम जमातों को साथ लेकर के एक ब्रॉड बेस्ड रिफॉर्म्स का आगाज किया और तमाम पार्टीज को ऑन बोर्ड लिया। लेकिन पाकिस्तान के केस में प्रॉब्लम यह है कि आपने पॉलिटिकल पार्टीज को तो भी ऑन बोर्ड तो लेना है, लेकिन इंडिया में आपको पता है दिल्ली में कुपिंडी नहीं है, यानी कि वहां पे एस्टैब्लिशमेंट नहीं है जहां कि उनको भी आपको ऑन बोर्ड लेना पड़े। तो जो भी पाकिस्तान के अगर अंदर ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर आता है, इस तरह का अगर कोई बाई पार्टीजन कंसेंसस करने की कोशिश भी करे, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि जो तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी ऑन बोर्ड लिया